বিজেপির জাতীয় সম্মেলনে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, কংগ্রেস রামের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে, পাশাপাশি ৩ তালাক আইন, ইউসিসি এবং ৩৭০ ধারা অপসারণের বিরোধিতা করেছেন। অমিত শাহ দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আবারও প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। তিনি বলেন যে মোদীর উন্নত ভারতের সংকল্পকে এগিয়ে নিতে আমরা এখান থেকে যাব। 2047 সালে ভারত কেমন হবে তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বার্তা নিয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন এনেছেন। অমিত শাহ এদিন আরও বলেন, 75 বছরে এই দেশ 17টি লোকসভা নির্বাচন, 22টি সরকার এবং 15 জন প্রধানমন্ত্রী দেখেছে। দেশের প্রতিটি সরকারই তার নিজের সময়ে সময়োপযোগী উন্নয়ন আনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আজ আমি বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি ছাড়াই বলতে পারি যে সার্বিক উন্নয়ন, প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং প্রতিটি ব্যক্তির উন্নয়নের কাজ কেবল নরেন্দ্র মোদীজির 10 বছরের সময়কালে হয়েছে। स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। मित्रों, परिवारवाद, अभी ढेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल, इंडिया अलायंस, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते, वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। मुझे विश्वास है कि एक और मोदी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें और दूसरी ओर अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टियां है। देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिलेक्ट करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। देखिए साहब, इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। অমিত শাহ এদিন জানান, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট দলিত, উপজাতি এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে, কিন্তু প্রথমবারের মতো বিজেপির মোদী সরকার তাদের সম্মান এবং অংশগ্রহণের কাজ করেছে। আজ আপনাদের সকলের মাধ্যমে আমি কোটি কোটি বিজেপি কর্মীকে বলতে চাই যে আগামী নির্বাচনে 2টি শিবির মুখোমুখি হচ্ছে। তিনি বলেন যে একদিকে মোদীজির নেতৃত্বে এনডিএর জোট এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমস্ত পরিবারবাদী দলের অহংকারী জোট। এই অহংকারী জোট দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং তুষ্টিকরণের রাজনীতি লালন করে এবং বিজেপি এবং এনডিএ জোট নেশন ফার্স্ট নীতিতে চলা একটি জোট। অমিত শাহ বলেন যে কংগ্রেস যখন এত দুর্নীতিতে লিপ্ত হয় তখন তার বন্ধুরা কেন পিছিয়ে থাকবে? আম আদমি পার্টির মদ কেলেঙ্কারি, মহল্লা ক্লিনিক এবং আরও অনেক কেলেঙ্কারি রয়েছে। মানুষের মেডিকেল টেস্ট করার ক্ষেত্রেও তারা কেলেঙ্কারি করেছে। এ কারণে আজ তাদের পুরো নেতৃত্ব আদালত ও সংস্থা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন যে আজ আমি এখান থেকে কংগ্রেসকে সতর্ক করতে চাই
রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আপনি কেবল এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হতেই পিছপা হননি, বরং নিজের দেশকে মহান তৈরির প্রক্রিয়া থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। দেশের মানুষ এটা দেখছে এবং মনেও রাখছে। मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है। 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है। वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे, इसका महत्व है। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले। सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं, वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में नहीं। भाई और बहनों, मोदी जी एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती है। जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी। ইন্ডিয়া জোটকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, কেরালায় 100 জনেরও বেশি বিজেপি কর্মী শহীদ হয়েছেন এবং 300 জনেরও বেশি অক্ষম হয়েছেন। সেখানে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স শাসন করে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলায় আমাদের শত শত কর্মী নিহত হয়েছে। নির্বাচনে সব সময় কারচুপি, জালিয়াতি ও সহিংসতা হয়েছে। সেখানে ইন্ডিয়া জোট ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব। আমরা সহিংসতার শিকার। সহিংসতা ছাড়াই এমন কোনো জোট যদি থাকে তবে সেটা অহংকারী জোট। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্র্যাক টিভি বাংলা।